कृष्ण जन्म उत्सव, जन्म अष्टमी हम सब मनाने के लिए आप सभी ब्रह्मा कुमारीज के शांति सरोवर में पधारे हैं। आप सभी को ब्रह्मा कुमारीज शांति सरोवर के तरफ से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। थैंक यू। बहुत समय के बाद आप सभी परमात्मा के घर में शांति सरोवर में पधारे हैं। आप सभी को देखकर हमारे मन बहुत प्रसन्न है, खुश है। आप सभी को परमात्मा के घर से सुख शांति वर्षा देने के लिए ये प्रोग्राम रचा गया है। तो हम बहुत स्पेशल टाइम्स से गुज़र रहे हैं, पैंडमिक टाइम में गुज़र रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं वो भी हम सब फॉलो करेंगे। यस, फॉलो करेंगे सभी। तो आज हम बहुत खुशी से ये प्रोग्राम और कृष्ण का आह्वान भी करेंगे और हम सभी खुशी से ये उत्सव में पार्टिसिपेट करेंगे। तो पहले हम कल्चरल से शुरू करेंगे। तो फर्स्ट वी इनवाइट कुमारी निवेदिता टू परफॉर्म अ डांस ऑन वो कृष्णा है। तो सभी पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम कुमारी निवेदिता। एंड निवेदिता इज अ किड ऑफ 4th class from Kendriya Vidyalaya Gachibowli, learning Kuchipudi from past 4 years, and she has achieved many achievements. She won first prize in mono action conducted by World Telugu Tana Association. 50 Kuchipudi dance performances given online and offline at national and international level. So she is amongst us. Let's welcome Nivedita for Wo Krishna Hai. कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, कृष्णा है। जो है अलबेला मदनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, कृष्णा है।
वंडरफुल निवेदिता, बहुत अच्छी तरीके से हम सभी को बहलाया और प्रोग्राम का शुरुआत कराया. थैंक यू निवेदिता. वंस अगेन अ बिग अप्लॉज फॉर నివేదిత. కృష్ణుడి యొక్క లీలలు అపరంపారము, అన్నిటికీ ఒక రహస్యం అనేటువంటిది ఉంది. ఆ రహస్యాలతో కూడుకున్న విధంగా మనం ఒకవేళ జన్మాష్టమిని రేపు ఎల్లుండి జరుపుకున్నట్లయితే దానికే అర్థము పరమార్థము. కాబట్టి కృష్ణుడి లీలలను మనకు చక్కగా ఒక పాట రూపంలో విష్ణుప్రియ అక్కయ్య తీసుకుని వస్తున్నారు. చిన్నప్పటి నుండి మనం వింటూ పెరిగినటువంటి పాటనే జయ కృష్ణ ముకుంద మురారి. దాంట్లో చాలా మంచిగా కృష్ణుడి యొక్క లీలలన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టి లెట్స్ వెల్కమ్ విష్ణుప్రియ సిస్టర్, who is dedicated her life for past 4 years in godly service. శాంతి సరోవర్లో ఉంటూ తన యొక్క మధురమైనటువంటి గొంతుతో ప్రతి ఒక్కరిని మంత్రముగ్ధులు చేస్తున్నటువంటి విష్ణుప్రియ అక్కయ్య మనకి కృష్ణుడి లీలల యొక్క పాట వినిపిస్తారు. ఒక్కొక్క సీట్ వదిలి అందరూ కూర్చుంటే బాగుంటుంది. ఇప్పుడు కూడా చాలామంది వస్తున్నారు. ప్లీజ్ ఫాలో దిస్ ప్రోటోకాల్. సో లెట్స్ వెల్కమ్ విష్ణుప్రియ సిస్టర్. ఓం శాంతి. సో ఈ పాట పాడడానికి గల ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే, పరమాత్మ నేర్పించేటువంటి రాజయోగ మెడిటేషన్ ద్వారా మన లోపల కూడా దైవీ గుణాలని ధారణ చేసి అలాంటి శ్రీకృష్ణ సమానంగా తయారవ్వాలనేటువంటి దృఢ సంకల్పంతో ఈ యొక్క పాట మనం విందాం. हे कृष्ण मुकुंद मुरारी जय कृष्ण मुकुंद मुरारी, जय गोविंद वृंद विहारी. कृष्ण मुकुंद मुरारी, जय गोविंद वृंद विहारी. कृष्ण मुकुंद मुरारी. దేవకి పంట వసుదేవు వెంట, దేవకి పంట వసుదేవు వెంట, యమునను నడిరేయి దాచితి వంట. ఆ ఆ వెలసితి వంట నందుని ఇంట, వెలసితి వంట నందుని ఇంట, రేపల్లె ఇల్లాయ నంట. కృష్ణ ముకుంద మురారి, జయ గోవింద బృంద విహారీ. కృష్ణ ముకుంద మురారి. నీ పలుగాకి పనులకు గోపెమ్మ, నీ పలుగాకి పనులకు గోపెమ్మ, కోపించి నిను రోట బంధించెనంట. ఆ ఊపున బోయి మాకుల గూలిటి, ఊపున బోయి మాకుల గూలిటి, శాపాలు బాపితి వంట. కృష్ణ ముకుంద మురారి, జయ గోవింద బృంద విహారీ. కృష్ణ ముకుంద మురారి.
అమ్మా తమ్ముడు మన్ను తినేను చూడమ్మా అని రామన్న తెలుపగా అన్నాని చెవినిలిమి యశోద ఏదన్నా నీ నోరు చూపు మనగా చూపితివట నీ నోటను బాపురే 14 భువన భాండముల ఆ రూపముగనిన యశోదకు తాపము నశించి జన్మధన్యతగా జయ కృష్ణ ముకుంద మురారి జయ కృష్ణ ముకుంద మురారి कालीय फणी फण जालान झण झण कालीय फणी फण जालान झण झण केली घटिंचिन गोप किशोरा कंसादि दानव गर्वापहार कंसादि दानव गर्वापहार हंसा विदूरा पाप विदूरा कृष्ण मुकुंद मुरारी जय गोविंद वृंद विहारी कृष्ण मुकुंद मुरारी कस्तूरी तिलकं ललाटफलके वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं च कलयं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि विजयते गोपाल चूडामणि ललित ललित मुरली स्वराली पुलकित वनपाली गोपाली पुलकित वनपाली विरलीकृत नव रास केली विरलीकृत नव रास केली वनमाली चिकी पिंचमौली वनमाली चिकी पिंचमौली कृष्ण मुकुंद मुरारी जय गोविंद वृंद विहारी कृष्ण मुकुंद मुरारी जय गोविंद वृंद विहारी कृष्ण मुकुंद मुरारी। अभी हम सब मिलकर क्लैप्स करेंगे। हम सभी एक संकल्प भी करेंगे। इस राजयोगा मेडिटेशन द्वारा हम जो सीखते हैं हम भी ऐसा श्री कृष्ण बने। इस म्यूजिक के साथ हम ये संकल्प भी करेंगे। మనం కూడా అలాంటి దివ్య గుణాలు కలిగినటువంటి
శ్రీకృష్ణుడిగా అవ్వాలి. స్వయం పరమాత్మ నేర్పించేటువంటి ఈ రాజయోగ మెడిటేషన్ ద్వారా సో మనం కొద్దిసేపట్లో ఈ దృశ్యాన్ని కూడా మనం చూడబోతున్నాం. సో ఈ యొక్క సంగీతంతో మనం ఎప్పుడైతే సంకల్పం చేస్తామో ఆ సంకల్పం తప్పకుండా సిద్ధిస్తుంది. సో అందరూ ఏకాగ్రంగా ఇదే సంకల్పం చేద్దాం. ఈ మ్యూజిక్ బిట్ 1 minute ప్లే అవుతుంది. कृष्ण मुकुंद मुरारी ओम शांति. थैंक यू सो मच. కృష్ణాష్టమి అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది నెమలి పించము, మురళీనాదము, రాసక్రీడలు. సో ఎంతో చక్కగా శ్రీకృష్ణుడి యొక్క లీలలన్నింటినీ మనకు పాట ద్వారా తెలియపరిచారు. దాంతోపాటు అందరి యొక్క మనస్సుని కూడా ఆహ్లాదపరిచారు విష్ణుప్రియ సిస్టర్. దాంతోపాటు శ్రేష్ఠ సంకల్పం చేశారా మీ అందరూ? చేశారా అందరూ? ఎస్. ఎందుకంటే ఏ సంకల్పం అయితే చేస్తారో అది సిద్ధిస్తుంది. సిద్ధించేటువంటి స్థానంలో కూర్చున్నారు. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. మరొకసారి రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫర్ విష్ణుప్రియ సిస్టర్. कहते हैं सबसे सुंदर दिव्य गुणधारी मोर मुकुटधारी सबसे आकर्षण मूर्त कृष्ण मुरारी सतयुग के प्रथम राजकुमार का हो रहा चैतन्य में आगमन. आओ करे श्री कृष्ण लीला का दिव्य दर्शन. तो अभी हम आगे बढ़ते हुए बहुत अच्छे सुंदर डांस परफॉर्मेंस देखेंगे. कुमारी अनुषा जो कि मल्टी टैलेंटेड है, डांसर भी है, तबला और कीबोर्ड भी प्ले करते हैं. 12 years old but she does many miracles. So let's welcome अनुषा. बचपन से यहाँ पर शांति सरोवर में आते, ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ते, बहुत परफॉर्मेंसेस भी किया है और यहाँ पर आते अपनी कलाओं को भी निखारा है अनुषा. तो अभी डांस बाय अनुषा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी. तो लेट्स वेलकम अनुषा
for dance now. कृष्णा हरे कृष्णा 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 देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी बंसी बजैया रास रचैया तारनहार मेरे तुम ही केवैया तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज परंपार तेरी तू माखन चोर कहावे भवसागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला तेरी भक्ति में नाचे सब ताता भैया श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज बहुत सुंदर अनुषा ने सुंदर डांस के साथ हम सबके मन मोह लिया। हम आह्वान करते हैं फ्लूट म्यूजिक लाइव फ्लूट बाय कुमार समर्थ। तो लेट्स वेलकम समर्थ। समर्थ ऑल्सो इज़ वेरी स्पेशल चाइल्ड, इंटेलिजेंट चाइल्ड, 12 years old। बचपन से वो यहाँ पर शांति सरोवर में आते उनके मदर के साथ बहुत अच्छा उनका जीवन बहुत अच्छा बन गया है। तो आउट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने 2 साल से अभी स्पेशली फ्लूट बजाना सीखे हैं। तो फर्स्ट परफॉर्मेंस है तो सभी उनके हौसला बढ़ाएंगे और बहुत अच्छी रीति से उनको वेलकम करेंगे और ये इससे उनके प्रगति हो उन्नति हो जीवन में। तो समर्थ का लाइव फ्लूट म्यूजिक सुनेंगे अभी।
थैंक यू। आप सभी पहचाना? दैट वाज द मैशअप ऑफ 8 सॉन्ग्स। तो बहुत सुंदर रीति से उन्होंने सीखा और इसी प्रोग्राम के लिए फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस किया। समर्थ, थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम जिसके लिए बैठे हैं उस श्री कृष्ण के आगमन के लिए हम सब इंतज़ार में हैं। మనమందరము కృష్ణుని చూడటాని కోసం, కృష్ణుని లీలలను ఇక్కడ చైతన్యంగా జాంకీ రూపంలో చూడటాని కోసం మనమందరము వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాము. తప్పకుండా అలాంటి ప్రపంచంలోకి వెళ్ళడానికి కోసము మనం మన జీవితాన్ని కృష్ణుడి సమానంగా చేసుకోవాలి. అందుకనే అంటూ ఉంటారు, कृष्ण जैसा देदीप्यमान बनने का यह सु अवसर है, परमात्मा शिव के प्रति ही जिनके दिल में है आकर्षण वही गोपेश्वर श्री कृष्ण है, जिसके मन में सदा बहती रहती है परमात्मा प्यार की पावन धारा, और उनके साथ है वही सच्ची राधा। तो कृष्ण का जो हम चैतन्य में झांकी के रूप में आज देखने जा रहे हैं, आप सब रेडी हैं उसके लिए? तो कहते हैं, अब वह दिन दूर नहीं, भारत भूमि देवभूमि होगी, हर घर की मंदिर होगी, हर घर में मंदिर होगी, सुख शांति समृद्धि से भरपूर होगा, रिंचक मात्र भी ना कोई कमी होगी। तो ऐसे दुनिया में जाने के लिए हम सभी सहज राजयोग गीता ज्ञान सीख रहे हैं। परमात्मा शिव स्वयं इस धरा पर आकर हम सभी को गीता ज्ञान सहज राजयोग सिखा रहे हैं। तो 1 मिनट हम उस परमात्मा की याद में बैठते हैं, फिर उसके बाद प्रोग्राम का बताया जाएगा। श्री कृष्ण का हम आह्वान करेंगे और नृत्य के साथ साथ झांकी का भी हम साक्षात्कार करेंगे। तो इसके लिए आमंत्रित करते हैं शांति सरोवर का डांस ग्रुप। इसमें हमारे समर्पित भाई भी है और साथ साथ जो रोज़ नियमित रूप में यहाँ पर आकर राजयोग और ज्ञान सीखते हैं और अपने जीवन को एक एग्जाम्पल के रूप में बनाए, वो सब आपके सामने आ रहे हैं। मारुति भाई, मानस भाई, ईश भाई, राजशेखर भाई, कात्यायनी बहन, संतोषी बहन, अनुषा बहन और पूरा ग्रुप आने वाले हैं। सब एक बार करतल ध्वनि से रास मंडली का स्वागत करेंगे और बीच में कृष्ण भी आपके सामने आएंगे और साथ ही साथ पूरा झांकी का भी आप साक्षात्कार करेंगे। और एक बार जोर से करतल ध्वनि से सभी का आह्वान करेंगे। आपके आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, श्री कृष्ण स्वयं इस दुनिया में आ जाए और नया सतयुगी राज्य का स्थापन हो जाए। तो फिर से एक बार अच्छा सा ताली बजाएंगे। ये एक्सरसाइज भी है और खुशी भी लाती है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। बजाते रहे एक बार। नंद
के संग में आज रास रचे कृष्ण कान्हा। कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। आई पूनम की प्यारी रात रास रचे कृष्ण कान्हा। कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। नाचे राधा जी सुध बुध गवा के संग छलिया जी का पाके। ओ नाचे राधा जी सुध बुध गवा के संग छलिया जी का पाके। हो गूंजे गूंजे उत्सव में जग सारा आज राधा कृष्ण कृष्ण राधा। आई पूनम की प्यारी रात राधा कृष्ण कृष्ण राधा। कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। कृष्णा आए कृष्णा जगमग हुआ रे अंगना। चांद सूरज सितारे झुके चरणों में सारे आज झूम झूम गाए जमुना। कृष्णा कृष्णा आए कृष्णा जगमग हुआ रे अंगना। जय हो यशोदा मैया की जय जय कृष्ण कन्हैया की जय हो यशोदा मैया की जय जय कृष्ण कन्हैया की जय हो यशोदा मैया की जय जय कृष्ण कन्हैया की।
स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। वसुंधरा पर देखो वो साकार हो रहा है। सतयुगी देवी देवों का महारास हो रहा है। सतयुगी देवी देवों का महारास हो रहा है, महारास हो रहा है। बहुत सुंदर नृत्य के साथ हम सभी कृष्ण का आह्वान किया। एक बार करतल ध्वनि से कृष्ण का आवाहन करेंगे। आप झांकी बहुत सुंदर देख रहे हैं। यह झांकी मात्र झांकी नहीं, आने वाली कल की यही तस्वीर है, यही तस्वीर है। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी। यही इस भारत भूमि के आने वाली तकदीर है। आप सभी उस तकदीर को बनाने के लिए परमात्मा के घर में पहुँचे हैं। तो जो झांकी देख रहे हैं आप, इसका रहस्य क्या है? ఏదైతే చూస్తున్నారో దాని రహస్యం ఏంటి? क्यों हम कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं? इसका सही रूप में अर्थ को जानने के लिए और उस अर्थ से आप सभी कल ये जन्माष्टमी मनाने के लिए हम सभी को गाइडेंस देंगे, आशीर्वाद भी देंगे। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी कुलदीप दीदी जी, हम सभी करतल ध्वनि से दीदी का आह्वान करेंगे। दीदी के ही सुंदर संकल्प से आप सभी यहाँ पर आ जाए हैं। लगभग 1.5 ईयर्स से भी ज़्यादा हो गया, 19 मंथ्स हो गया। आप सभी पहुँचे हैं आज, तो दीदी के ही शुभ संकल्प से आप आए हैं। बहुत लोग दीदी को जानते ही होंगे। कुलदीप दीदी बाल्यकाल से मात्र 4 साल की उम्र से ब्रह्मा कुमारी के साथ रहते, राजयोग का अध्ययन करते, अपने जीवन को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में तैयार किया है और बहुत सारे भाई बहनों को मार्गदर्शन करने के लिए आप निमित्त बने हैं। दीदी, आप हैदराबाद और पूरा तेलंगाना के जो ब्रह्मा कुमारी ब्रांचेस हैं उसका आप निर्देशिका है और साथ ही साथ शांति सरोवर का भी डायरेक्टर है। बहुत सरल स्वभाव, इजी नेचर और खुशनुमा मिजाज से और अपने बोल से भी सभी को मन बहलाते हैं। श्री कृष्ण समान आकर्षण मूर्त है। तो दीदी आज हम सभी को श्री कृष्ण का अर्थ और जन्माष्टमी का रहस्य सुनाएंगे और साथ ही साथ आप जो झांकी देख रहे हैं उसका भी अर्थ समझाएंगे। तो लेट्स वेलकम कुलदीप दीदी जी। तो आप सभी को खुशी होती होंगी, बहुत समय के बाद आए हैं। जिन जिन को होता है, या हु इज़ फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी कमिंग आफ्टर सो मच टाइम? यस, यू आर एंजॉइंग एवरी मोमेंट हियर। एंजॉय कर रहे हैं आप सभी? अच्छा लग रहा है? तो ऐसे दुनिया में जाने के लिए आप सब तैयार हैं? రెడీనా మీ అందరూ అలాంటి ప్రపంచంలోకి వెళ్ళటానికి కోసము? కేవలం ఇక్కడ మనం జన్మాష్టమినే జరుపుకోవడం కాదు, మన జీవితాన్ని కృష్ణుడిలాగా ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అనేటువంటి సందేశాన్ని తీసుకుని కుల్దీప్ అక్కయ్య గారు రాబోతున్నారు. రాజయోగిని బ్రహ్మకుమారి కుల్దీప్ అక్కయ్య గారు బాల్యం నుండినే వారి జీవితాన్ని పరమాత్మ జ్ఞానంతో ఎంతో ఆకర్షణీయంగా తయారు చేసుకున్నారు. ఎంతోమందికి ప్రేరణ ఇవ్వడానికి కోసం వారి జీవితాన్ని పరమాత్మ సేవకు అంకితం చేశారు.
బ్రహ్మకుమారీస్ యొక్క హైదరాబాద్ మరియు తెలంగాణలో ఉండేటువంటి బ్రాంచెస్, ఇంకా శాంతి సరోవర్కి కూడా డైరెక్టర్గా ఉంటూ వారి యొక్క చాలా మంచి పరిపాలన కళ్ళతో అందరి యొక్క మనసుని ఆహ్లాదపరిచేటువంటి కుల్దీప్ దీది గారు ఇప్పుడు మనకి చక్కగా జన్మాష్టమి యొక్క రహస్యాన్ని, కృష్ణుడి యొక్క రహస్యాన్ని ఎలా జరుపుకోవాలి వీటన్నిటి గురించి తెలియపరుస్తారు. మరొకసారి కర్తాళ ధనులతో దీదీని మనమందరము ఆహ్వానిద్దాము. రాజయోగిని బ్రహ్మకుమారి కుల్దీప్ దీది గారు. ओम शांति। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। हम सभी भारतवासी सारे विश्व में जहाँ जहाँ भी हैं, हर वर्ष कृष्णाष्टमी का पर्व हम बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। अनेक भक्तों की भीड़ मंदिरों में होती है। बहुत सुंदर रूप से कृष्ण की झांकी को अलंकृत किया जाता है और सभी कृष्ण के दर्शन के अभिलाषी दूर दूर से पहुंच जाते हैं। आज भी आप देखिए, आप सभी जो भी यहाँ पधारे हैं, केवल कृष्ण को साक्षात रूप में इन आँखों से निहारने के लिए कहें या उसके दर्शनार्थ यहाँ हम सब पधारे हैं। कृष्ण के नाम में ही बहुत बहुत आकर्षण है और आप ये जानते भी हैं, आपके सन्मुख जो भी कृष्ण बने ये आप लोगों के बच्चे ही हैं, लेकिन हम किस भावना से देख रहे हैं। हमारे बीच में श्री कृष्ण और श्री राधे का अवतरण हुआ है। सतयुगी गोप गोपियाँ उनके साथ रास रचा रहे हैं। देखते ही सभी का मन प्रसन्नता से झूम उठता है। सचमुच अगर श्री कृष्ण यहाँ आ जाए तो हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। हम भी उन गोपियों की तरह मंत्र मुग्ध होकर क्या करेंगे? कृष्ण के साथ रास लीला रचाने के लिए सबके सब स्टेज पर आ जाएंगे। कृष्ण कौन है, क्या उसकी लीलाएं हैं? हम सब जब कृष्ण लीलाएं देखते हैं और सुनते हैं, बहुत से विवेकशील व्यक्ति आश्चर्य भी करते हैं और उन्हें कुछ ठीक सा भी नहीं लगता है। हमारा श्री कृष्ण परम पवित्र आत्मा, जिसे 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, उनके चरित्र लीलाएं ऐसी कैसे हो सकती? और हम सब श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानते हैं। सर्वप्रथम यह जानने की आवश्यकता है भगवान है कौन, क्योंकि गीता में आप अगर परमात्मा की पहचान सुनेंगे तो उसमें भगवान ने कहा है, मैं अव्यक्त हूँ, अजन्मा हूँ, अशरीरी हूँ। मेरा जन्म या मेरा अवतरण एक साधारण पुरुष के तन में होता है, इसलिए मुझे कोटों में कोई में भी कोई आत्मा पहचान सकेंगे। आप ही विचार कीजिए, क्या श्री कृष्ण ऐसे कह सकता है मैं अजन्मा हूँ, जबकि उनकी तो जन्म की लीलाएं दिखाई हुई हैं।
श्री कृष्ण कैसे कह सकता है मैं अशरीरी हूँ? उसका तो हम शरीर देख रहे हैं। वो कैसे कह सकता है मैं अव्यक्त हूँ, व्यक्त में नहीं हूँ? ये है हम सभी आत्माओं के पिता परमात्मा शिव का परिचय। उनका ही गुणवाचक नाम कृष्ण है, अर्थात परमात्मा सबको अपनी ज्ञान की मुरली से आकर्षण करने वाले कृष्ण हैं। अभी देखिए, श्री कृष्ण को भी ऐसा बनाने वाला वो परमपिता परमात्मा है। कृष्ण को हम मुरलीधर क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने परमात्मा की ज्ञान की मुरली सुनकर अपने जीवन में धारण कर ऐसा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया जो भविष्य सतयुगी दुनिया में उनका देवी देवताओं के रूप में जन्म हुआ। वर्तमान समय कलयुग का अंत है। परमात्मा का अवतरण भी साधारण तन में हो चुका है। 86 ईयर्स हो चुके हैं। क्योंकि गुप्त है इसलिए हम उनको इन नेत्रों से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने और समझने के लिए दिव्य चक्षु या दिव्य बुद्धि की आवश्यकता है, जो परमात्मा के दिए ज्ञान से हमें प्राप्त होती। परमात्मा का जन्म साधारण मनुष्यों के तरह नहीं है, लेकिन उनका अवतरण है। श्री कृष्ण के जन्म के लिए भी हम सब सुनते थे कि श्री कृष्ण भव सागर में तैरते हुए एक पीपल के पत्ते पर आया, अर्थात उनका जन्म बहुत पवित्र जन्म है। ऐसा मनुष्यों जैसा नहीं दिखाया। पीपल के पत्ते का मतलब है जब ये सारी कलयुगी दुनिया का विनाश होगा, भारत के साथ कुछ खंड जुड़े हुए होंगे जिसका शेप पीपल के पत्ते की तरह होगा। उस भारत का या कहेंगे सारा विश्व ही उस समय जितना होगा वो पीपल के पत्ते जैसा होगा। उसका प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण की आत्मा और श्री राधे जन्म लेंगे। बाल्यकाल में राधे कृष्ण ही, युवा अवस्था में लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। इसलिए हम लोग भजन भी करते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण के ही कई नाम हैं, मुकुंद, कृष्णा, हरे मुरारी, लेकिन दोनों का पिता नारायण का और कृष्ण का पिता वासुदेव है, ऐसा कहा गया है। अब कृष्ण जो है सतयुगी दुनिया अर्थात संपूर्ण विश्व का मालिक है। इसलिए उसकी माँ को जब उसने मुख खोला, एक तरफ तो वो माखन का गोला दे रही है, लेकिन उसने उसके मुख में सृष्टि का गोला देखा। इसका मतलब क्या है? श्री कृष्ण जिसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, अभी वो कृष्ण माखन क्यों चुराएगा? चोरी तो तब की जाती है जब हमें खाने को नहीं मिलता है, ठीक से हमारी माँ हमको नहीं पालती है, ठीक समय पर भोजन नहीं देती है। जो है विश्व का मालिक उसे कौन रोक सकता है? तो माखन चोर क्यों कहा गया? क्योंकि आज की दुनिया में सभी देश लड़ रहे हैं कि ये विश्व के राज्य का गोला मुझे मिल जाए, सारा विश्व विनाश को प्राप्त होगा। केवल भारत में जो स्वर्ग बनेगा वो माखन का गोला कृष्ण के मुख में आता है। इसीलिए उसकी माँ को सृष्टि का गोला उसके मुख में दिखाई दिया, अर्थात वही विश्व का मालिक बनेगा। तो इसलिए भाइयों और बहनों, अगर हम यथार्थ रहस्य को जान लें कि हम ये किस तरह की धर्मग्लानि कर रहे हैं, इसीलिए बहुत से लोग हमें कहते हैं, बहन जी
आप सनातन धर्म का थोड़ा प्रचार कीजिए। बहुत से लोग क्रिश्चियनिटी में चले जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग प्रचार करते आपका एक भगवान कमज़ोर जिसकी सीता चोरी हो गई, और एक भगवान चोर जो मक्खन चुराता था और स्त्रियां चुराता था, जिसकी 16,108 पटरानियाँ थी, वो आपकी क्या रक्षा करेगा। तो ये हम ही अपने धर्म की ग्लानि करते हैं। तो कृष्ण ना तो माखन चोर था, ना ही उसने कोई 16,108 पटरानियाँ चुराई थी, लेकिन कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में आएगी तो अकेला थोड़ी राज्य करेगा। उसके साथ उसके मित्र संबंधी, उसकी प्रजा, रॉयल प्रजा, उसका जो राजाई घराना होगा, वो सब मिलाकर 16,108 होंगे। तो कहाँ इतना श्रेष्ठ चरित्रवान आत्मा, उसके तो आप देखिए चरित्र की हालत क्या कर दी। अब जहाँ देवी देवताएं रहते हैं वहाँ राक्षस नहीं होते हैं, लेकिन कृष्ण के साथ कंस आदि बहुत से है ना, पूतना, शूर्पणखा, पता नहीं क्या क्या दिखाते देवताओं के राज्य में। राम के राज्य में शूर्पणखा थी, इसके साथ पूतना थी, अनेक प्रकार के राक्षस थे। लेकिन ये राक्षसी गुणों को निकालने के बाद ही हमारे अंदर दिव्य गुण आएंगे, जिससे हम देवता बन सकते। तो ये राजयोग से हमें विश्व की बादशाही मिलती है, अर्थात आप सभी भी कृष्णपुरी में आने के लायक बन सकते हैं। तो आज आप देख रहे कृष्ण के लिए बताते हैं, कृष्ण ने क्या किया था, उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा दिया। सोचिए आप, ये उंगली पर्वत कैसे उठा सकती है। पर्वत कितना बड़ा होता है। लेकिन इस सृष्टि का परिवर्तन परमात्मा जब करते हैं, जिसमें पूरे आसुरी संप्रदाय हैं, कलयुग में घोर अंधकार और धर्म ग्लानि के समय पर इस कलयुग को पुनः सतयुग बनाना, एक प्रकार से पूरा रेनोवेट करना बहुत बड़ा काम है। लेकिन परमात्मा हम सब से उंगली मांगते, चाहे ये दे दो, चाहे ये दे दो, चाहे ये दे दो या ये दे दो। सभी की छोटी बड़ी उंगली, अर्थात अपने उंगली में 3 निशान है। आप अपने तन मन धन का सहयोग करो तो मैं इस कलयुगी पर्वत को उठाकर सतयुगी दुनिया इस धरा पर उतार दूंगा। तो ये सहयोग की निशानी है। ये सहयोग की शक्ति भी हमें राजयोग से मिलती है। हम सबके सहयोग से इस सृष्टि का परिवर्तन करना है, लेकिन सृष्टि के परिवर्तन से पहले हमें स्व का परिवर्तन करना। फिर आप देख रहे हैं राधे कृष्ण बहुत सुंदर झूले में झूल रहे हैं, क्योंकि आप सब ने सुना है कि अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोपियों से पूछो। तो झूला झूलना अर्थात इस इंद्रियों से अतीत होकर आत्मिक सुख, जिसे अति इंद्रिय सुख कहते। आज जो हम सुख कहते हैं ना, वो इंद्रिय सुख है जो टेम्परेरी है। मान लो आपको अच्छा सा भोजन खिलाएंगे, बड़ा आनंद आया, आपको कोई बैड न्यूज़ आ गई फ़ोन में जिसमें आप आनंद ले रहे थे, आपको दोबारा कोई भाई या बहन ऑफ़र करे, आपको इस स्वीट में आनंद आ रहा था, एक और दे दूं, तो नहीं, अभी मज़ा गया। आनंद कहाँ था, खुशी कहाँ थी? आपके मन में थी, ना कि वो व्यंजन में। तो अति इंद्रिय सुख माना जो इंद्रियों से अतीत होकर हम आत्मिक सुख का अनुभव करते। तो कृष्ण की तरह आप सदा इस जीवन में सुख शांति के झूले में झूलते रहें। ऐसा सुखमय संसार बनाने में हम सब सहयोगी बनेंगे तो सतयुग के महाराज कुमार महाराज कुमारी का दर्जा आप सब प्राप्त कर सकते। कोई असंभव बात नहीं है, सब कुछ संभव है।
कृष्ण के साथ साथ केवल वो ही ऐसे आनंद का अनुभव नहीं कर रहे, लेकिन उनके साथ रहने वाली गोप गोपियाँ भी रास कर रहे। ये रास का मतलब क्या है? आजकल हम देखते हैं ना, शादी के समय पर क्या मिलाते हैं? कुंडली या राशियाँ मिलाते हैं। राशियाँ मिलाने के बाद भी क्या होता है? डिवोर्स हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। परमात्मा कहते ये राशियाँ मिलाने से कुछ नहीं होगा। किस किस की मिलाएंगे आप? सास बहू की भी मिलाओ, पति पत्नी की मिलाओ, देवर देवरानी जेठ जेठानी सबसे मिलाओ ना, सबसे तो होते ही नहीं संस्कार मिलन। तो ये रास है अपने अंदर के संस्कारों का सबके साथ मिलन हो। जब हम संस्कारों की रास करेंगे, अर्थात सबके साथ हमारा हारमनी हो जाएगी, समझौता होगा, तो हम ऐसी दुनिया में रास करने के लायक बनेंगे। हमारी दादी जी को आपने देखा, अभी तो वो इस शरीर में नहीं है। जानकी दादी जी पहले पहले आपको आमंत्रित कर रही थे ना कृष्णपुरी के लिए, तो हमको हमेशा हमारी बड़ी दादियाँ बोलती हैं, हारमनी के लिए आप हार मान लो। एक व्यक्ति अगर हार मान ले, हारमनी हो जाती है। आप देखिए अभी जो गीत बज रहे थे, संगीत बज रहा था, उसमें जो म्यूजिशियन है वो भी हारमनी के साथ रहते। अगर तबला वाला अलग सुर दे, हारमोनियम वाला अलग सुर दे, और जो भी सितार गिटार बजाने वाले अलग अलग सुर दे, तो मज़ा नहीं आता। सब सुर मिलने से ही हारमनी होती है। तो इस तरह संबंधों में हम हारमनी लाए, समरसता लाए, एकता लाए, तब विश्व में सुख शांति का साम्राज्य हम ला सकेंगे। ऐसी दैवी दुनिया में आने के लिए आप सबको हार्दिक निमंत्रण है। ओम शांति। परमात्मा शिव, ओ परम प्रिय परमेश्वर, निराकार ज्योति बिंदु, इस सारे संसार को स्वर्ग बनाने वाले सर्वशक्तियों के सागर परम पिता परमात्मा को मैं अपने मन में आह्वान कर रही हूँ। ब्रह्मलोक निवासी परमात्मा, इस भौतिक भूमंडल से पार, सूर्य चांद सितारों से भी पार,
चारों तरफ सुनहरे लाल प्रकाश प्रकाश, सुखदाई शांति, परम आनंद का ये दिव्य लोक शिव परमात्मा का स्थान है। मैं आत्मा उस ज्योति बिंदु शिव परमात्मा से शक्तियां, एक प्रकाश अपने में समा रही हूं। शिव बाबा की इन किरणों से मैं आत्मा शुद्ध पवित्र उस सत्य पिता के संग में सुंदर बनती जा रही हूं। फील करो कुछ पल उस परमात्मा की प्रकाश में मैं आत्मा खो गई हूं। उस परमात्मा की शक्ति अपने में समाकर मैं आत्मा फिर वापस इस धरा पर अवतरित हो रहे हूं। सूर्य, चांद, सितारे, पृथ्वी एक गेंद मिसल दिखाई दे रहा है। मैं धीरे धीरे इस भूमंडल पर इस परमात्मा के पवित्र शांत शीतल शांति सरोवर के ग्लोबल पीस ऑडिटोरियम में इस शरीर में विराजमान मैं अपने मन में आज जो परम आदरणीय कुलदीप दीदी ने जागृति दिया, उस जागृति को वरदान के रूप में मैं अपने जीवन में लागू करूंगी। मैं अपना जीवन, अपना परिवार, अपना देश, अपना विश्व सुखदाई सत्युग आह्वान करने में पहला स्टेप मुझ में परिवर्तन लाने का, दैवी गुण, दैवी संस्कार, हार्मनी बनाए रखने में हार को मानते हुए श्री कृष्ण के देवताओं की रुंडमाला में आने, पहले अपने आप में श्रेष्ठ दिव्य परिवर्तन का शुभ संकल्प लेती हूँ। हर एक अपने मन में परम आदरणीय दीदी से दृष्टि लेते हैं।
इस श्री कृष्ण की झांकी का अवलोकन करते, कृष्ण की जैसा हंसते खेलते परिस्थितियों को सामना करते, परमात्मा शिव को अपना साथी बनाकर इस विश्व को स्वर्ग बनाएंगे। फिर से एक बार दृढ़ता से एक पल अपने मन में श्रेष्ठ परिवर्तन का संकल्प करेंगे। ओम शांति शांति शांति। राजयोग साधना आत्मा को शांत सशक्त बनाती है। तो आप सभी, हम सभी कुलदीप दीदी जी के द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का रहस्य और कृष्ण का रहस्य किस अर्थ से सही मायने में हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाए, बहुत सुंदर रीति से दीदी ने हम सभी को अवगत भी कराया और साथ ही साथ हम सभी को ब्लेसिंग्स भी दिए। कुलदीप दीदी को तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। साथ ही साथ बहुत मधुर आवाज़ से शक्तिबेन हम सभी को राजयोग का कमेंट्री देते, हमारे मन को भी एक चैनलाइज कैसे करना है उन्होंने हम सभी को गाइडेंस भी दिया। शक्तिबेन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बताते हुए हमको बहुत हर्ष हो रहा है। कुलदीप दीदी का अभी आपने सभी सुना। दीदी जी का जीवन ऐसे एक पुष्प के समान कैसे बना, आप सभी जानना चाहते होंगे। तो दीदी जी का जो एक्सपीरियंस है उसका इंटरव्यू भी आज हम सभी शांति सरोवर के यूट्यूब चैनल में पोस्ट किया और आज हम लॉन्च किया है ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंसेस, अनुभवों का खजाना। एक प्रोग्राम है, आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसमें पहले हम कुलदीप दीदी जी का अनुभव आज प्रीमियर हुआ है शांति सरोवर के यूट्यूब चैनल में। ऐसे टाइम टू टाइम बहुत अच्छे अपने जीवन में प्रेरणादायक जिनका भी एक्सपीरियंसेस है उन सभी का भी एक्सपीरियंसेस आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो शांति सरोवर में आप फिज़िकली आजकल नहीं आ पा रहे हैं तो सुंदर सा यूट्यूब चैनल के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम भी पोस्ट करते जाते हैं। उसमें जैसे फेस्टिवल्स का रहस्य है या संडे इवनिंग टॉक है, राजयोग शिविर है और रोज़ का जो ज्ञान मुरली है उसका भी आप सभी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आप शांति सरोवर से वर्चुअली जुड़ सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल का नाम है शांति सरोवर हैदराबाद। तो आप सभी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स को भी देख सकते हैं। देखेंगे ज़रूर। आप सभी बहुत कुछ पोस्ट करते हैं, फॉरवर्ड्स करते रहते हैं, लेकिन जो पुण्य का काम है, अच्छी अच्छी बातों का और धारणा युक्त बातों का आप फॉरवर्ड करेंगे तो आपके पुण्य खाता भी बढ़ता जाता है। तो ये प्रोग्राम्स आप वर्चुअली शांति सरोवर से कनेक्ट भी हो पाते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और जो फर्स्ट टाइम आए हैं जिनको पोस्ट नहीं मिलता है, यहाँ पर जो प्रोग्राम्स चलता है तो बाहर आपका एज इट इज़ रजिस्ट्रेशन डेस्क तो नहीं है, लेकिन अपने भाई बहनें बैठे हैं बाहर एंट्रेंस में, वहाँ पर आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर दे सकते हैं ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और बाहर आप देखे होंगे बहुत सुंदर सा नन्हा सा बाल कृष्ण का रूप भी रंगोली के द्वारा, और साथ ही साथ सुंदर फूलों का भी रंगोली बनाया है। जिन्होंने भी नहीं देखा, क्योंकि फ्रंट एंट्रेंस से जो आए हैं वहाँ पर नहीं देखे होंगे,
जाने के पहले ज़रूर आप दर्शन करके जाइए। हम सब हैं श्री कृष्ण के साथ नंदगांव में और उनका चरित्र भी देख रहे हैं, लीलाएं भी हम सभी सुना देखा भी। तो अभी नंदगांव से गोपियाँ आ रहे हैं, तो हम सभी वेलकम करेंगे गोपिकाओं को। A dance performance by Rising Star Dance Studio, and I welcome Maheshwari, Binny, Gayatri, Usha and Nayesha for dance performance. सभी गोपिकाएँ आएंगे और डांस टीचर है कौशिकी दास, who is the member of International Ballet Troupe and Dance International Group of Kathak and Bharatanatyam. From past 5 years, she started teaching and now 21 years of experience in this field. So now let's welcome performance from Rising Star Dance Studio, Kanha Manena. साथ ही साथ हम इनवाइट करेंगे राइजिंग स्टार डांस स्टूडियो से कंटिन्यूएशन में अभी नन्हे से गोपिकाएँ आएंगे, अद्रिका, रितिका, आनिया, अर्शिया, दिया, तनीषा, जोशिता, रितुल और वानिया. लेट्स वेलकम ऑल द किड्स ग्रुप फ्रॉम राइजिंग स्टार डांस स्टूडियो. मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया. मोही मोही ऐसे नहीं छेड़ो सावरे, सुन सुन मौसे नहीं खेलो दावरे, जाके यशोदा से ओ
जय श्री कृष्ण। वंडरफुल, बहुत सुंदर तरीके से रेजिंग स्टार डांस एकेडमी डांस स्टूडियो से परफॉर्मेंस देखा और एक बार करतल ध्वनि से सभी गोपिकाओं को हम सभी का अप्लॉज भी देंगे और आशीर्वचन भी है आप सभी का उनके ऊपर। अभी लास्ट परफॉर्मेंस बाय निवेदिता एंड कीर्तना कान्हा मानेना। तो सुंदर रीति से दोनों कुमारियाँ हमारे सामने डांस प्रस्तुत कर रहे हैं, निवेदिता एंड कीर्तना ऑन मुकुंदा मुकुंदा डांस।
बहुत सुंदर, कुमारी निवेदिता, कुमारी कीर्तना, बहुत अच्छे से हम सभी का मन मोह लिया। तो अभी हम रिक्वेस्ट करते हैं ज्योति प्रज्वलन के लिए आदरणीय ब्रह्मा कुमारी कुलदीप दीदी जी, और साथ ही साथ हमारे ऑनर्ड गेस्ट टुडे शंकरయ్య गारू, एडिशनल कमिश्नर GHMC, और उनके धर्मपत्नी कविता गारू, వారితో పాటు సుష్మా మహేందర్ రెడ్డి గారు, చైర్పర్సన్, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ శంషాబాద్, వెంకటేష్ గౌడ్ గారు, నార్సింగి మార్కెట్ కమిటీ చైర్పర్సన్, నీరజ గారు, శంకర్పల్లి ఆర్యవైశ్య సంఘం వైస్ ప్రెసిడెంట్, అందరినీ కూడా స్టేజ్ పైన ఆహ్వానిస్తున్నాము. జ్యోతి ప్రజ్వలనతో మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దాము. జ్యోతి ప్రజ్వలన ఆత్మ జ్యోతిని వెలిగించుకోవడానికి కోసం మనందరము కూడా రాజయోగ సాధన చేస్తున్నాము. మన జీవితంలో ఎన్నో విలువల్ని పెంచుకోవడానికి కోసము జ్ఞానాన్ని కూడా వింటూ ఉన్నాము. మనందరి గెస్ట్లు కుల్దీప్ అక్కయ్య గారితో పాటు జ్యోతి ప్రజ్వలనలో పాల్గొంటారు. మీరందరూ కూడా సూక్ష్మంగా ఇక్కడ జ్యోతిని వెలిగిస్తున్నారు. దాంతోపాటు మీ ఆత్మ జ్యోతిని కూడా వెలిగించుకోవడానికి కోసం ప్రయత్నం చేద్దాము. हम सभी साथ में अपना आत्म ज्योति जगाने के लिए हम एफर्ट करते हैं, परमात्मा को याद करते, आत्मा की ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, विश्व शांति की ज्योति जगाओ, धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ, ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ. ఆత్మ జ్యోతిని వెలిగించుకొని లోపల ఉన్నటువంటి అజ్ఞాన అంధకారాలను తొలగించేటువంటి ప్రతిజ్ఞ ఈరోజు స్వయంతో స్వయం చేద్దాము. పరమాత్మ స్మృతితో ఆత్మజ్యోతిని వెలిగించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఐ రిక్వెస్ట్ శంకరయ్య గారు, అడిషనల్ కమిషనర్ GHMC, వారి గ్రీటింగ్స్ అందచేయాల్సిందిగా ఈ కార్యక్రమం పట్ల ఐ రిక్వెస్ట్ శంకరయ్య. Thank you for inviting this Krishnashtami program. I myself, Shankaraya, Additional Commissioner GHMC. So, Krishnashtami is one of the most joyous festivals of Hindus and Indians also. So, the program is well organized. All of us are enjoyed a lot. I congratulate all the participants and organizers, all brothers and sisters, and the audience. Thanks for giving me this opportunity. I hope you enjoy Krishnashtami today and tomorrow also. Thank you. Thank you. థ్యాంక్ యూ శంకరన్నయ్య. మీరు బ్రహ్మకుమారిస్కి సుపరిచితులు, చాలాసార్లు శాంతి సరోవర్కి రావడం జరిగింది, ఎన్నో అమూల్యమైన సేవలను కూడా ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నవ్ ఐ రిక్వెస్ట్ సుష్మా మహేందర్ రెడ్డి గారు, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ శంషాబాద్, వారు కూడా గ్రీటింగ్స్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. అందరికీ ఓం శాంతి. అక్కయ్యకు, పెద్దక్కయ్యకు, అక్కలకు ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ముఖ్య అతిథులు మన GHMC కమిషనర్ సారు శంకరయ్య సార్ గారికి, వాళ్ళ సతీమణి గారికి, కవిత గారికి, అందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారాలు.
అట్లాగే పెద్దక్కయ్యకు మిగతా అక్కయ్యలకు అందరికీ కూడా కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసినటువంటి కృష్ణాష్టమి సంబరాలు చాలా చక్కగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనము భూలోకంలో ఉన్నామా కైలాసంలో ఉన్నామా అనే విధంగా ఇక్కడ డాన్సులు కానీ ఇక్కడ సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుడు వచ్చి కూర్చున్నట్టుగా ఉంది. కళ్ళకు చాలా విందుగా అనిపిస్తుంది. ఇది వరకు ఎప్పుడు కూడా మేము ఇలాంటి సంబరాలను చూడలేదు. ఇదే ఫస్ట్ టైము. మాకైతే చాలా ఆనందంగా ఉంది. అందరము కృష్ణాష్టమి మీ అందరికీ కూడా కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి వారందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుష్మా గారు. ఇప్పుడు కుల్దీప్ అక్కయ్య గారు వచ్చిన గెస్టులందరికీ కూడా ఈశ్వరీయ కానుక మరియు ప్రసాదంతో సత్కరిస్తారు. हम सभी करतल ध्वनि से सभी गेस्ट का और इतना अच्छा प्रोग्राम दीदी ने ऑर्गेनाइज किया है, तो दीदी के लिए भी हम सब करतल ध्वनि से और सभी गेस्ट को भी करतल ध्वनि से हम आभार व्यक्त करते हैं. बहुत सुंदर सा आज कार्यक्रम आप सभी ने एंजॉय किया, देखा. जो भी डांस के बच्चे हैं वो भी शाम से बहुत समय से यहाँ पर बहुत अच्छा हमारे मन को मोह लिया अपने परफॉर्मेंसेस के साथ. उनको भी सभी गेस्ट गिफ्ट और टोली से सभी चिल्ड्रन आएंगे. ऑल द चिल्ड्रन प्लीज कम ऑन द डायस. यू विल बी रिसीविंग द गिफ्ट्स एंड प्रसाद फ्रॉम दीदी एंड ऑल द डिग्निटरीज. फर्स्ट आई रिक्वेस्ट डांस टीचर कौशिकी जी, प्लीज आप आइए स्टेज पर. और सभी माताएं सभी आएंगे स्टेज पर. आराध्या फ्रॉम मणिकोंडा स्टेज पर आएंगे. आराध्या फ्रॉम मणिकोंडा. अभी लास्ट में सभी रास करेंगे. सभी भाई बहनें भी रास कर सकते हैं और बाहर सभी के लिए प्रसाद भी है, तो सभी जाने के पहले प्रसाद लेके जाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को. आप सभी वर्चुअली शांति सरोवर से जुड़ सकते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स में. మణికొండ ఆరాధ్య ఇప్పుడు ఒక చక్కటి పాటతో మనందరినీ అలరిస్తారు. రామ 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 నీలి మేఘ శ్యామ రామ రఘుకుల శోమ భద్రాచల శ్రీరామ మా మనసు విరబూసే ప్రతి సుమగానం నీకేలే కరుణించి కురిపించే మా ప్రతి దీవెన మాకేలే నిరతం పూజించే మాతో. थैंक यू वेरी मच आराध्या. अभी सभी वृंदावन में मटकी फोड़ते खुशी से आनंद उल्लास से रास करेंगे. भाई बहनें भी नीचे सामने आके डांस कर सकते हैं. सॉन्ग्स प्लीज़.
और आप सभी को फिर से धन्यवाद। आप सभी शांति सरोवर से वर्चुअली जुड़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल में भी जुड़ सकते हैं। और जाने के पहले आप सभी बाहर प्रसाद भी लेंगे और सही तरीके से कल आप सभी जन्माष्टमी मनाएंगे। थैंक यू फॉर कमिंग। ओम शांति। अभी रास चलेगा, आप सभी देख रहे हैं, मटकी फोड़ रहे हैं वृंदावन में, सभी कृष्ण के साथ ग्वाल बाल